সুশৃঙ্খলভাবে ওনারা ওখানে উপস্থিত থেকে এত সুন্দরভাবে আমাদের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে সম্পন্ন করার জন্য আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। আমাদের যে 16ই আমাদের ফেব্রুয়ারিতে আমাদের যে ইলেকশন সম্পন্ন হলো এবং যাদের মাধ্যমে ইলেকশনটা সম্পন্ন হয়েছে, ইলেকশন কমিশন, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের আধিকারিক এবং আরক্ষা দপ্তরের যারা যুক্ত ছিল সবাইকে, এবং আপনারাও কিন্তু এর মধ্যে ব্যতিক্রম নয়, আপনারাও আমাদের সাহায্য করেছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। এত সুন্দরভাবে ত্রিপুরাতে একটা ইতিহাস রচনা হয়েছে যে কোনো জায়গায় কোনো রকম উচ্ছৃঙ্খলতার কোনো খবর ছিল না 16 তারিখ। এবং এতদিন ধরে আমরা দেখেছি যে নানা রকম সাইন্টিফিক রেগিং এর কথা হতো, ছাপ্পা ভোটের কথা বলা হতো, সেইগুলো কোথাও ছিল না। এবং 2 মার্চ যে রেজাল্টটা বেরোলো সমস্ত জায়গার মধ্যে কোনো রকম কোনো সমস্যা ছিল না, সেটাও আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, মানুষও কিন্তু দেখেছেন। এবং এর জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই আবার। কিন্তু ইদানিং আমি দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গার মধ্যে এটা একটা স্বার্থান্বেষী মহল থেকে সেটা করানো হচ্ছে বা করছে, যে কিছু কিছু খবর আমার কাছে আসছে। আমি আরক্ষা দপ্তরকে বলেছি কঠোরভাবে যেন ওটা মোকাবেলা করেন এবং আইনের পথে চলবে। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে আগামী দিন আমরা যে ভিজন ডকুমেন্টস, যেটা আমরা নির্বাচনী ইস্তাহার আপনাদের সামনে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি সেদিন প্রকাশ করেছেন, সেইগুলোকে আমরা সামনে রেখে তার জন্য বাস্তবায়ন হয় সেই দিশায় আমরা কাজ করব আমাদের সরকার। এবং ত্রিপুরাতে আইনের শাসন যেন বজায় থাকে সেটা আমাদের প্রায়োরিটি থাকবে। স্বাস্থ্য বিভাগ সেটার দিকে আমরা প্রায়োরিটি হিসাবে সেটাকে আমরা অ্যাড্রেস করব। এগ্রিকালচার, এডুকেশন, স্পোর্টস, আরও যেসব বিষয়গুলো আছে সব বিষয়ে আমরা অ্যাড্রেস করব। এবং সাধারণ মানুষের এবং প্রান্তিক মানুষের যেসব মৌলিক সমস্যা আছে সেগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করব। সবাই শান্তিতে আমরা থাকতে চাই। আরেকটা বিষয় যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের জনজাতির যে ক্ষেত্র আছে সেখানে অনেক সমস্যা অনেকদিন ধরেই ছিল। আমরা চেষ্টা করেছি সেই সমস্যাগুলো নিরসনে। আগামী দিন আমরা সেইগুলোর দিকে আরো বেশি করে যাতে জনজাতি এলাকা এবং জনজাতি ভাই বোনদের যাতে ওনাদের উন্নতি হয় সব দিক দিয়ে সেই চেষ্টা আমরা করব। আর্থসামাজিক এবং সামাজিক উন্নয়ন হয় সেই দিশায় আমরা কাজ করব। এবং আমাদের এই সরকার একটা দৃষ্টান্ত আগেও আমরা স্থাপন করেছি, আবার স্থাপন করতে চাই যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সরকার, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেভাবে আমাদের সরকার চলছে, যে স্বচ্ছতার যে সরকার, সেটা আমরা ত্রিপুরাতেও সেই স্বচ্ছতার নিদর্শন আমি রাখতে চাই। ধন্যবাদ। সদস্যদের বৈঠক হয়েছে, কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে? আমাদের মেইন 2-3টি বিষয়ে কথা হয়েছে, যে সেটা হচ্ছে প্রোটেন্স যে স্পিকার, সেটার বিষয়ে আজকে ডিসিশন হয়েছে। মাননীয় বিনয় ভূষণ দাস যে আমাদের এমএলএ আছেন পানিসাগরে, ওনাকে প্রোটেন্স স্পিকার করা হয়েছে। তো বাকি আমাদের মেইন এই বিষয়টার জন্য আমাদের আজকের আলোচনা, এবং আগামী দিনে আমাদের ভোটন অ্যাকাউন্ট যেটা হবে ফিনান্সের উপরে সেই বিষয়ে আজকে কথা হবে। দপ্তর বন্টন কি হয়েছে? দপ্তরের মধ্যেই আমরা ঘোষণা করবো, 1-2 দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। আপনার এবারের মন্ত্রিসভায় বেশ কয়েকজন যুব চেহারা দেখা গেছে, আবার বেশ কয়েকজন বাদও পড়েছেন, মানে এটার পেছনে কি কোনো অন্য কারণ রয়েছে? না, এরকম না। আমাদের এখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন লাস্ট যে রিসাফলিং করে সেখানেও আপনি দেখেছেন বহু লোককে, আমাদের এটা রীতিনীতি যে কিছু লোক চলে যাবে আবার নতুন করে নতুন আসবে, এবং সেইভাবেই কিন্তু কাজ চলে। এরকম না কাউকে বাদ দেওয়া হয়েছে, আবার কেউ চলে যাবে আবার আসবে। তো সেটা আমাদের নর্মাল রুটিন ওয়ার্কের মধ্যেই পড়ে। বাকি কোনো 3টি খালি রয়েছে, সেগুলো কবে পূরণ হবে? সেটাও ফুলফিল হবে। এর আগের আমাদের যখন 2018-তে হয়েছে সেখানেও কিন্তু সেভাবেই খালি ছিল, এবং সেটা ফিল আপ হয়েছে, সেটাও অচিরেই হবে। গতকাল টিপরা মাথার সাথে বৈঠক ছিল এবং বৈঠক শেষে বলা হয়েছিল যে পরবর্তী সময় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আলোচনা হবে জনজাতির কল্যাণে। মূলত কি ইস্যু উঠে এসেছে? সমস্যার কথা বারংবার বলা হচ্ছে, কি সমস্যা উঠে এসেছে? না, নিশ্চয়ই আমরা তো বারবার বলছি যে জনজাতিদের জন্য, জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য যে কেউ আমাদের কাছে আসতে পারে, সে বিরোধী দলেরই হোক, যে দলেরই হোক, তাদের উন্নতি হচ্ছে আমাদের মেইন প্রায়োরিটি। এবং আমরা সেই জায়গাটাকে প্রায়োরিটি এরিয়া
ত্রিপুরা ল্যান্ড কি প্রায়োরিটি পাচ্ছে? না, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা কোনো অবস্থায় সমর্থন করি না। স্যার বাকি এমএলএরা কবে শপথ নেবে স্যার আলোচনা হয়েছে? ওই তো সেটা তো বললাম তো, প্রোটেম স্পিকারের যখন আমাদের 15 তারিখ খুব সম্ভব স্থির হয়, সেদিনই প্রোটেম স্পিকারের পরে সেখানে শপথ, যা নর্মাল প্রসিডিউর আছে সেভাবে হবে। স্যার আপনি সবাইকে ধন্যবাদ। স্যার আপনি প্রথম যে লেট মি গো। আপনি যখন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যখন আপনার হাতে সময়টা একটু কম ছিল, আমি সরকারের কাছে অনেক খুশি। এখন আপনি আরো 5টা বছর সময় পেয়েছেন, কিভাবে রাজ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবেন? নিশ্চয়ই এখন তো সময়টা যেহেতু বেশি পেয়েছি, তো কিন্তু সময় বেশি না, কিন্তু আমি তো ভাবছি যে আমাদের ক্যালেন্ডারটাকে, আমাদের বছরটা উল্টিয়ে দেবে। মানে 365 দিন, আমার একদিন চলে গেল, দুদিন চলে গেল, আর বাকি এতদিন, তো উল্টিয়ে একটা ক্যালেন্ডার সব ডিপার্টমেন্টে আমি ভেবেছি যে এটা আমি ফিক্স করে দেবো। তাতে ওই মানে সবাই, আদারওয়াইজ কি হয়, অনেকে মনে করে যে আমার কাছে অনেক সময় আছে। আমাদের যে কাউন্টডাউনের একটা ক্যালেন্ডার আমি ইচ্ছে আছে সেটা লাগানো। স্যার আরেকটা প্রশ্ন, এবার তো ভোট অন অ্যাকাউন্ট, পূর্ণাঙ্গ বাজেট তো পরে বোধহয় পেশ করবে। তো এই ক্ষেত্রে পূর্বতন যে অর্থমন্ত্রী ছিলেন জিষ্ণুদেব বর্মা, ওনার কি কোনো ওনার তো যেহেতু ওনাকে তো আমরা নিশ্চয়ই ওনার অ্যাডভাইস আমরা নেব। এমনিতে তো উনি তো এখন মন্ত্রী, সবাই কোনো অবস্থায় আসতে পারবেন না, না তো, কিন্তু উনি আমাদের আমাদের পার্টির একজন বিশিষ্ট ওল্ড আমাদের কলিগও বলা যায়, এবং ওনার নিশ্চয়ই পরামর্শ আমরা নেব। স্যার স্যার দুদিন ধরে আমরা স্যার কেস করছি আপনাকে। বলে দিলাম তো আর কি। না স্যার, কিন্তু বাংলা হয়ে গেলে বুঝতে পারছেন তো, আমরা তো বাংলা কথা বলতে পারি না। হিন্দুগুলো আছে, বাংলা কম, সব হিন্দুগুলো বাংলা আমি নিজে ওই রেডি করতে পারি लाइट ऑफ कर दे ये क्या हो रहा है लाइट लाइट कैसे ऑफ करें मेरा मेरा शॉट खराब हो जाएगा मैं लाइट ऑफ थोड़ा साइड दे ऑफ कर दे तो तू तो आई बता लाइट तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहब जी के साथ। और आपको बता दें कि एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लगातार दूसरी बार सरकार यहाँ पर बीजेपी ने बनाया है। और मानिक शाह जी एक बात बताइए, सबको जानना चाहता है, जो मैजिक चला वो मानिक का चला कि मोदी का चला? जो भी हमारे लिए तो सामने रख के हम लोग आते हैं, उन्हीं का मार्गदर्शन से हम लोग करते हैं, जनता भी उनको मानते हैं। और हम सभी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी, तो उनका जो मार्गदर्शन और उन्होंने जिस तरह जनता के लिए सोचते हैं, उनका जो बेनिफिशियरी स्कीम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सभी जो चीज़ है वो लेके हम लोग सबके पास में, तभी हम लोग जीत हासिल की। ऐसा एक बात बताइए, क्योंकि आपके लिए बहुत टफ था यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जो सीट्स आए, सीट्स कम हो गए, लेकिन बहुत टफ फाइट चली। मुझे याद है कि मैं जब न्यूज पढ़ रहा था तो मैं आपका टैली देख रहा था, कभी 300 ऊपर जा नीचे आ रहा, मतलब कितना टेंस था। किस तरह से आप लोगों ने पूरा मैनेज किया, किस तरह से आपने मतलब ये चीज को आखिर मतलब बोलते हैं ना कि जीत, बड़ी जीत को बदल दिया? देखिए, आज भी हमारा कैबिनेट में डिस्कशन हो रहा है, बहुत सारे सीनियर हमारा कोलीग जो अभी इस मंत्रिसभा में आए, ये लोग कह रहे थे कि मैं हमेशा इस तरह कहते थे, अभी डिसीजन नहीं है, जब मार्च में हम लोग ये डिसीजन, तो तारीफ कर रहे थे कि कितना कॉन्फिडेंट हम लोग बीच में था कि हम लोग आएंगे,
तो ये कॉन्फिडेंस तभी आया क्योंकि हमारा जो गार्जियन इतना स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी है हमारे साथ आदरणीय अमित शाह जी है, हमारा सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा जी है। इसलिए हमेशा हम लोगों के पास कॉन्फिडेंस था क्योंकि इतना डिसिप्लिन पार्टी है और इतना काम हमारा सरकार ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, इसलिए कॉन्फिडेंस था। ये जो भी है T20 के लिए जो भी कहिए, तो लेकिन अल्टीमेटली हम लोग जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस था। सीट जो कम हो गया वो क्या लगता है, क्या वजह रही उसकी? नहीं, कहाँ इतना कम हुआ हम लोग का, तो ये ठीक है 32+1 33 हुआ है। तो करीब कभी 10 नहीं, इसके बारे में हम लोग अभी बातचीत चल रहा है क्या क्या वजह है। और बहुत सारे जगह आप देखिए इस बार कम्युनिस्ट ये पूरा ये जहाँ जहाँ कांग्रेस का वो उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ तो डायरेक्टली वहाँ ट्रांसफर किया। तो ये सब कारण से पहले तो कांग्रेस CPM ये सब एक साथ अलग से अलग लड़ते थे, तो इससे थोड़ा सा हो सकता हो। अच्छा, त्रिपुरा मोता को लेकर आप लोग काफी लंबी बातचीत हुई, हमारी बातचीत हुई उनसे सचिव से, उन्होंने कहा कि इंटरलोक्यूटर बना दिया गया है और उनकी बात को कहीं ना कहीं सेंटर मान रही है। नहीं, अभी बातचीत चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मानने का सवाल नहीं है अभी, ये तो बातचीत अभी जारी है। तो ये अच्छा है कि ये लोग आ रहे हैं और खास करके ये जनजाति का उन्नयन के लिए वो लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो दोनों मिलकर हम लोग बात करेंगे, यही बात जो है वो जारी है। क्या दोनों को हम साथ में भी देखेंगे सरकार में? नहीं, ये अभी कैसे कह सकते हैं, ये तो अभी ये तो क्वेश्चन डजंट है। अच्छा, एक बात बताइए सर कि ये जो यहाँ पर जीत मिली है, क्या 2024 का एक तरह से हम देख रहे हैं कि आगाज हो चुका है, क्योंकि हम कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी है जीत के साथ। बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की, 3 राज्यों में सरकार में शामिल है या बना ली है यहाँ पर पूरी तरह से खुद ही आप लोगों ने। देखिए 2024 में भी हमारा रिजल्ट इससे भी अच्छा होगा, इतना मैं कह सकता हूँ, इससे भी अच्छा होगा, ये मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंट के साथ। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि कई बार पूछा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखिए एक तरफ यहाँ पर हेमंत दा है, ठीक है, उसकी तरफ आप दूसरी बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं जब फुल फ्लेजेड बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बना दी है। कितना आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से कितने आप लोग सीटें भेज देंगे? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो हमारे यहाँ तो 2 सीट है, तो हम कह सकते हैं त्रिपुरा से तो हम 2 और बाकी सब मिला लेंगे तो नहीं, बाकी तो अपना अपना स्टेट का जो CM है या वहाँ का पार्टी प्रेसिडेंट है, तो इन लोगों से आपको बात करना पड़ेगा, या दूसरा गवर्नमेंट पार्टी का सरकार है, इन लोगों से पूछना पड़ेगा। और जहाँ तक त्रिपुरा का सवाल है, इतना तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से दोनों सीट जो है दोनों में हम लोग BJP का सीट हम लेंगे। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए कि यहाँ पर राहुल गांधी जी उन्होंने जाके लंदन में कहा था कि जो भारत है, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भारत है वो देश नहीं है, वो क्या है, वो यूरोप है। मैं क्या कहूँ, ये अभी जाके वहाँ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्वार्टरमेस्टर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ उनको बुलाते हैं। और इंडिया में क्या दूसरा यूनिवर्सिटी नहीं है क्या, वहाँ तो इनको बुलाते नहीं है। तो ये सोचने वाला बात है, वहाँ जाके पूछ, यहाँ आके पूछ, तो ये आप मैं क्या बोलूँ इनकी बात में। अच्छा सर, ये राइट डिसीजन था क्या देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, हम लोग के यहाँ जो पद्धति है उस हिसाब से ही बना। सर बहुत बहुत आपको हमारे साथ और ये बात कही है कि जो आगाज यहाँ पर टीम के साथ हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही देना है, उसके बिना कभी हम लोग को जीत हासिल नहीं होना। हमारा गार्जियन है और जिस तरह उन्होंने देश के बारे में सोचते हैं, एक्टिस्ट पॉलिसी के माध्यम से त्रिपुरा को सोचते हैं, इसीलिए फर्स्ट तो इनको जाता है, उसके बाद त्रिपुरावासी जो जिन्होंने वोट दिया और पूरा त्रिपुरावासी के श्रेय। सर, त्रिपुरा मोता की जो मांग रही है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को लेकर के, क्या समर्थन करते हैं आप? नहीं, देखिए ये हम लोग तो पहले भी कह चुके हैं, लाइट बंद कर लो यार। समर्थन त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हम समर्थन। प्रद्युत बर्मन ने कहा कि रिटर्न में दिया गया है, तो सच है? नहीं, ऐसा नहीं, रिटर्न में नहीं है। नहीं, हमारा पास तो और 2024 के लिए क्या तैयारी है सर?
2024 के लिए जिस तरह हम लोग पहले भी तैयारी रहते थे ऐसे ही तैयारी है। हमारा संगठन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, अभी से स्टार्ट होगा। बहुत शुक्रिया सर। Sir, मानिक शाह को सुना आपने और Dr. Manik Shah, Tripura Chief Minister, is the man of the moment. He, of course, has led his party to victory. He was sworn in the presence of Union Home Minister Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi. Sir, your swearing in yesterday was a message from the BJP to the entire Northeast. So the BJP's presence here is now solid and showcasing that presence, your victory. You were sworn in the second time, but sir, there are some questions about the cabinet also. Some seniors left out, some young faces. What about that, sir? Is this how? Is this a part of the process, or is there something other considered? ये दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस और ये होता है हर जगह, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं है। कुछ पुराना जो है वो रह जाते हैं, कुछ नया आ जाते हैं, कुछ पुराना जो है चले जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसके लेके कभी भी कुछ क्वेश्चन नहीं आना। सर, दूसरा तिप्रा मोटा के साथ एक बातचीत हुई, आप शामिल थे, यूनियन होम मिनिस्टर शामिल थे, जेपी नड्डा जी शामिल थे। तिप्रा मोटा के बारे में उनका कहना है कि इंटरलॉक्यूटर का एक आश्वासन दिया गया है। क्या इससे बात आगे बढ़ सकती है, वो सरकार में शामिल हो सकती है? नहीं, ये तो बात की बात है, ये इस तरह कोई डिसीजन तो हुआ नहीं है अभी, तो इसको लेके कोई चर्चा भी नहीं हुई। बाकी हम लोग चाहते हैं कि जनजाति का उन्नयन हो, उस दिशा पर हम लोग बातचीत चल रहा है। सर, नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखा जाए तो 2024 बड़ी चुनाव है और आप कह रहे थे दोनों की दोनों सीट यहाँ से जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट से आपका क्या अनुमान है बीजेपी के लिए, कितना सीटें यहाँ से बीजेपी ले पाएंगे? देखिए, लास्ट टाइम हम लोग को जितना मिला था इससे ज्यादा मिलेगा, और त्रिपुरा के बारे में तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों सीट जो है हम लोग दोनों सीट जीतेंगे। सर, आखिरी सवाल, 3 बर्थ कैबिनेट में खाली रखा गया है, वो किसके लिए? देखिए, हमेशा होता रहता है, पहले भी ऐसा हुआ है, तो अभी हम लोग इस विषय में अभी फाइनल तो नहीं हुआ, तो देखेंगे उस हिसाब से हम लोग उसको फिलअप करेंगे, लास्ट टाइम जैसे किया ऐसा। और सर, एक और सवाल, कल अमित शाह जी के कॉन्वॉय में एक गाड़ी घुसने की एक वीडियो वायरल हो गया है। क्या यहाँ पे पुलिस की तरफ से आपको कुछ ब्रीफिंग दिया गया है कि कौन था, किसका गाड़ी था? सिक्योरिटी ब्रीच जैसा माहौल हुआ है, कहीं वो वीडियो देखकर लगता है? नहीं, मैं भी देखा न्यूज पेपर में शायद किसी जगह, तो हम उसमें पूछेंगे डीजी साहब को, तो मेरे पास तो अभी जानकारी नहीं है, खाली न्यूज में देखा। अब न्यूज का कितना ये वेदर इट इज ट्रू और नॉट आई डोंट नो, सो आई हैव टू आस्क। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। Dr. Manik Shah, busy man. Yes,